दोस्तों, ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये है जेकब एंड विलियम ग्रीम का। ये दोनों भाई हैं और इन्होंने बहुत अच्छी स्टोरियाँ लिखी है। उसमें से फेरी टेल नाम की जो स्टोरीज़ है, बुक है, उसमें से मैं आज आप लोगों को रम्पेलस्टेल्स्किन नाम का जो स्टोरी है वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ये जो है ये ओरिजिनल उस बुक का कॉपी है। प्लीज़ ऐसी सारी स्टोरियाँ सुनने के लिए, देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Rumpelstiltskin, adapted from Rumpelstiltskin by Grimm Brothers. Once upon a time, in a kingdom far away, a famine broke out. All the crops withered and the water bodies dried up. There was no money left to buy food and water from other kingdoms. People were hungry and sad. The young queen set out to seek help from neighboring kingdoms. In the meanwhile, Greedolf, the greedy minister, planned to steal whatever he could from the poor people. Scene 1. At the palace court. We'll force the people to pay more taxes. That way, we can live in luxury. A tax collector enters. I have a better idea. I heard a rumor that there is a girl who can spin straw into gold. If we can get her to work for us, we will get gold without doing any work at all. That is wonderful. Find this girl and lock her in a room. Give her all the straw we can find. Scene 2. A room filled with straw. Innocent Clara found herself locked in a room full of straw. She didn't know what to do. How could people with such great responsibilities believe a baseless rumor? She huddled in a corner and cried. I can't believe I'm here because of a rumor. I can prove that it is wrong because I can't turn anything into gold. But they won't believe me. I will be punished if I can't turn all the straw in the room into gold by tonight. A stranger enters, dancing and laughing. Oh, young miss, why do you cry? Tell me your sorrow. Don't be shy. I have to spin all this straw into gold, or I will suffer, as I am told. I am no fairy. I am no witch. If I had magic, would I not be rich? What? Who are you? Never mind that, young lady. Consider yourself saved already. Give me something that's precious to you, and I'll give you gold before morning dew. Precious? I'm a poor girl. I have no silver or gold. All I have is this string of beads. It is very precious. My grandmother gave it to me. Aha! What is precious to you is precious to me. There will always be more to what you see. Sing, whirl and spin, my dear spinning wheel. Sing, whirl and spin, turn to gold every reel. The next morning, Greedolf was very happy to find the room shining with gold. He rubbed his hands with joy and decided to prepare a bigger room and lock Clara in it for another night. Scene 3. A room like before, but bigger and with more straw. I see you are crying again tonight. Should I save you from your plight? Kind sir, you left before I could thank you. Can you help me again? Help you I can, and that's no boast, but for what you love the most. All I have is my mother's copper ring. My mother's gift, my most precious thing. What is precious to you Is precious to me. There will always be more to what you see. Sing, whirl and spin, my dear spinning wheel. Greedolf's greed
knew no bounds. He declared that Clara would be locked again in a much bigger room. Clara was sad, but not surprised. She had understood Gredolf's nature. Scene 4. Another straw room. Ah, I see your task is greater than before. You'll need all my help to do this chore. Ah, sir, I'm so happy to see you. Can you help me this last time? I don't have anything left with me right now, but when I am free, I will do anything, give you anything I can. Anything? Yes, anything. But please help me this last time. I will come seek my reward any day I want. Clara didn't know if she would live another day or if she would ever be in a position to give him what he would ask for. She hastily agreed. Sing while and spin, my dear spinning wheel. Sing while and spin, turn to gold every reel. As Clara slept, a good thing had happened. The young queen had returned to her kingdom. She was furious when she heard what had been done to poor Clara. She ordered her immediate release. When the queen was told that Clara was able to spin straw into gold, she decided to meet her. Scene 5. A room in the palace. How were you able to do this? Your Majesty, Don't be afraid. I understand your situation, so speak freely and truthfully. I will not punish you. It was my mistake for making such a greedy man a minister. Encouraged by the kind queen, Clara told her all about the stranger. The queen was very suspicious of his motives. She decided to find out all she could about him. They discovered that stranger often took advantage of people in need. He made people give him their precious things for helping them out. He needed to be taken to task. But for now, the queen declared that Clara would be given a job she was suitable for. Clara was an intelligent girl and soon found a good job. She worked hard, and in a few years, she started working directly under the queen. Everyone was happy, but Clara knew that stranger would come to claim his reward, and one day he did come by. Scene 6. Another room in the palace. Clara is sitting in her office and working. Stranger enters. For you I spun the finest gold. Now my reward I shall hold. This is the opportunity that everyone had waited for. They tried capturing stranger, but failed. He was too smart and could do magic. That is when stranger thought of a game. All right, let's play a game. If you can, guess my name. My freedom is yours to keep. Else, my reward I shall reap. is it Mark? Is it John? Is it Ron? Is it Howard, Derek, or Don? Stranger just laughed and disappeared. None of these names were his. He came every day and laughed as Clara tried her best to come up with new names. Stranger gave her an ultimatum. She had only one more day to guess the correct name. The queen sent her soldiers all over the kingdom to look for clues. That day, finally, one of the soldiers heard someone singing in the forest. It was Stranger dancing and singing around a small fire. Merrily the feast I'll make. Today I'll brew, tomorrow bake. Merrily will I dance and sing, for tomorrow my reward I'll bring. No one knows, oh what a shame! Rumpelstiltskin is my name. Now, Clara knew Stranger's real name. She patiently waited for him to return. Tonight is the end of the game. Tell me now, what is my name? Is it Tom, Harry, Rin? Or is it Rumpelstiltskin? No, no, no! This is now how it is supposed to be. The reward has to belong to me. Rumpelstiltskin felt his strength
draining out of him. His name was the source of his power, and now Clara held power over him. But Clara was a kind woman. Instead of simply punishing him for his past deeds, she made Rumpelstiltskin promise to stop taking advantage of others. He had to do good and kind deeds from now on. Better late than never. To apologize for his past mistakes, he donated a lot of money to the kingdom and started helping people in need. He often helped Clara and the queen as well. Everyone lived very happily, knowing that there was kind Rumpelstiltskin to take care of them. दोस्तों, तो आपने रम्पेल्स्टिल्टस्किन ये स्टोरी और जेकब एंड विलियम ग्रीम के बारे में उनके फ़ोटो भी देख लिए हैं। तो मैं अगर इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए इतनी सारी स्टोरी ला रही हूँ, कहानियाँ ला रही हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारी कहानियों को सुनिए, देखिए, अपने दोस्तों को दिखाइए। पास में जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। दोस्तों, तो हम सुनते हैं रम्पेल्स्टिल्टस्किन। ये हिंदी में ग्रीम का जो फेरी टेल है, इसमें से ये शॉर्ट एक स्टोरी लिया गया है। एक किंगडम था, ये पुरानी बात है। उस किंगडम में सूखा बहुत पड़ा था। सूखे के कारण आप देख सकते हैं ज़मीन कितनी सूखी हो गई, तो क्रॉप बिल्कुल नहीं थे वहाँ पे और पानी भी नहीं था। लोगों के पास फूड लेने के लिए दूसरे किंगडम को पैसा देना पड़ेगा, जो लोगों के पास भी नहीं था। लोग भूख से मर रहे थे, वो बहुत दुखी हो गए थे। तो उनकी जो यंग रानी थी, बहुत जवान थी, उसने सोचा कि नेबरहुड में जो पड़ोसी किंगडम है वहाँ पे जाऊँ और उनको हेल्प मांगूँ। तो उसका जो मिनिस्टर था ग्रिडोल्फ, ये बहुत ही गंदा आदमी था। ये सोच रहा है कि रानी गई है, तब तक मैं गरीब लोगों से बहुत सारे टैक्सेस ले लूँ और अमीर होके अच्छी खासी ज़िंदगी बिता सकता हूँ। तो उसने अपने सर्वेंट को ऑर्डर छोड़ दी कि गरीब लोगों से ज़्यादा टैक्सेस निकलवाओ। लेकिन तभी टैक्स कलेक्टर वहाँ पे आ जाता है और वो बोलता है कि मैंने अभी एक अफवाह सुनी है। उस अफवाह में मैंने ये सुना कि एक लड़की है जो स्ट्रॉ को गोल्ड, स्ट्रॉ मतलब एक जो गेहूँ निकलने के बाद जो डंडी रहती है, उसको वो गोल्ड बना सकती है। तो ग्रिडोल्फ जो है वो बहुत ग्रीडी आदमी था। वो बोला कि उस लड़की को लेके आओ, ढूंढो और उसको रूम में रख दो, पूरी रूम स्ट्रॉ से भर दो और उसको बोलो कि इसको गोल्ड करे, नहीं तो उसको पनिश किया जाएगा। तो सर्वेंट लोग गांव में जाते हैं, उस लड़की को ढूंढ के लाते हैं और उसको एक रूम में लॉक कर देते हैं और वहाँ पे ढेर सारी स्ट्रॉ रख देते हैं। लड़की बेचारी एक कोने में एक स्टूल के ऊपर बैठती है। उसको तो बेचारी को लॉक किया गया है और बोला गया है कि सुबह मॉर्निंग तक ये सारी स्ट्रॉ क्या है, गोल्ड बननी चाहिए। वो तो बेचारी, उसको समझ में नहीं आता है। एक झूठी अफवाह, उस झूठी अफवाह के कारण उसको आज ये वाली ऐसी ज़िंदगी बितानी पड़ रही है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। बेचारी क्या करेगी, कुछ भी नहीं कर सकती। उसका कौन बिलीव करेगा? अगर वो किसी को बताएगी भी तो ये सब गलत है, ये कैसे बताएगी? और वो ये सब स्ट्रॉ को गोल्ड कैसे करेगी? ये सोचते सोचते वो रोने लग जाती है। एक रात में ये तो पॉसिबल ही नहीं था। वो रोती है, बहुत रोती है। उसकी रोने की आवाज़ जो है वो पूरा रूम में घूमती रहती है। तभी एक वहाँ पे स्ट्रेंजर सा आदमी आ जाता है। वो डांस करता है, गाना गाता है और लड़की को पूछता है, तुम इतने जवान हो, इतनी सुंदर हो, फिर इतनी दुखी क्यों हो और इतना रोती क्यों हो? शर्माओ मत, मुझे बताओ। तो लड़की बताती है अपनी दुख भरी कहानी कि आज मुझे रात में इस स्ट्रॉक को, इस जो स्पिनर है, इसको गोल घुमा के इसको गोल्ड बनाना है, ये सारी की सारी स्ट्रॉ को। तो आदमी हंसने लगता है और बोलता है, अच्छा ठीक है। तो लड़की बोलती है, देखो भाई, ना मैं कोई परी हूँ, ना मैं कोई राक्षस हूँ, ना ही मुझे कोई जादू आता है और ना ही मैं इतनी अमीर हूँ। लेकिन हे बाबा, तुम कौन हो, यहाँ पे कैसे आ गए? तो वो स्ट्रेंजर आदमी बोलता है,
जवान लड़की, खूबसूरत लड़की, डरो मत, तुम्हारे पास जो भी अनमोल चीज़ है मुझे दे दो, उस चीज़ को लेके मैं इसके बदले में तुम्हें ये सारी की सारी स्ट्रॉ गोल्ड कर सकता हूँ। लड़की बोलती है मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास अनमोल चीज़। तभी वो अपने पॉकेट में हाथ डालती है और उसकी दादी माँ ने जो उसको एक छोटा सा नेकलेस दिया था जो उसको बहुत पसंद है ब्लू कलर का, वो उस स्ट्रेंजर आदमी के हाथ में दे देती है और बोलती है कि यही मेरी अनमोल चीज़ है। तो वो बोलता है कि तुम्हारी अनमोल चीज़ अब हो गई मेरी, अब तुम देखो कैसे फटाफट से ये सारी की सारी स्ट्रॉ हो जाती है गोल्ड की। वो स्पिनर को घुमाता है, एक एक स्ट्रॉ को डालता है और तभी सारी की सारी रूम में रखी हुई सारी स्ट्रॉ जो है वो गोल्ड की बन जाती है। लड़की उसको देखती है और वो सो जाती है। सुबह मॉर्निंग में ग्रिडाल्फ जब आता है तो उसको पूरी रूम में रोशनी दिखती है, पूरी रूम में स्ट्रॉ रखी है, वो सारी की सारी गोल्ड हो जाती है। क्लारा नाम है उस लड़की का। तो वो अपने हाथों को रगड़ता है और बोलता है कि ये तो बहुत अच्छा काम करती है, इसको और भी बड़े रूम में रखेंगे और ज़्यादा स्ट्रॉ दे देंगे, देखते हैं गोल्ड बनाती है क्या नहीं। उसको बहुत बड़े रूम में रखा जाता है और उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉ दिया जाता है। बेचारी क्लारा क्या करेगी, वो क्लारा तो रोती रहती है, उसको समझ में नहीं आता। उस दिन तो उस स्ट्रेंजर आदमी की मदद से मैंने ये किया था, लेकिन आज, और वो आदमी फ़ौरन उसके सामने आ जाता है और उसको बोलता है कि देखो तुम रो मत, तुम फिर से मुझे तुम्हारी जो भी चीज़ तुम्हें बहुत पसंद है वो वाली चीज़ मुझे दो। लड़की हैरानी से बोलती है मैंने आपको पहले ही बोला था मैं गरीब लड़की हूँ। फिर भी वो पॉकेट में हाथ डालती है और पॉकेट में हाथ डालने के बाद उसके पॉकेट में उसकी माँ ने उसे जो कॉपर की रिंग दी होती है वो रिंग उसको दिख जाती है। वो उस स्ट्रेंजर आदमी को बोलती है कि ये मेरी माँ की निशानी है, ये मुझे बहुत प्यारी है। तब वो ले लेता है और बोलता है तुम्हारी प्यारी चीज़ हो गई मेरी, अब मैं तुम्हें सारे का सारा ये गोल्ड करके देता हूँ। और वही करता है, वो सारा का सारा गोल्ड बना देता है। सारी स्ट्रॉ को स्पिनर को घुमाता है और सारी स्ट्रॉ एक के बाद एक गोल्ड बन जाती है। सुबह मॉर्निंग में फिर से ग्रिडॉल्फ है वो आता है। अब इसको तो और भी वो ग्रीडी हो जाता है, उसको और बड़े रूम में उसको शिफ्ट कर देता है और ज़्यादा स्ट्रॉ दे देता है। वो लड़की बेचारी बहुत सरप्राइज़ और बहुत दुखी हो जाती है। उसको पता है कि ये जो ग्रिडॉल्फ है ये मुझे ऐसे ही परेशान करने वाला है, इससे मुझे अगर छुटकारा चाहिए तो और कुछ आइडिया मुझे निकालनी पड़ेगी, लेकिन कैसे। तभी वो स्ट्रेंजर आ जाता है और वो स्ट्रेंजर उस लड़की को फिर से बोलता है कि आज फिर से तुम दुखी हो और ये क्या, इतनी सारी स्ट्रॉ और इतनी बड़ी रूम तुमको दे दी। तो लड़की बोलती है हाँ देखो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं खुशी हूँ तो मेरे लिए आज मुझे लास्ट टाइम में फिर से एक बार हेल्प कर दो और फिर मैं जब फ्री हो जाऊंगी इस रूम से तो तुमको जो चाहिए मैं वो चीज़ तुमको लाके दे दूंगी, लेकिन अभी प्लीज़ मेरी हेल्प करो, ये सारी की सारी स्ट्रॉ को गोल्ड बना दो और मैं तुमको प्रॉमिस करती हूँ कि ये लास्ट टाइम है, इसके बाद में मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी, तुम मुझे मत देना। तो आदमी बोलता है मैं जो मांगूंगा तो तुम दे दोगी। लड़की बोलती है हाँ बाबा हाँ पक्का, मैं जब फ्री बन जाऊंगी, मुझे अच्छी खासी जॉब लग जाएगी, तब मैं तुमको जो चाहिए वो मैं दे दूंगी। लेकिन बेचारी लड़की क्या करेगी, दूसरा कुछ कर भी नहीं सकती थी। स्ट्रेंजर स्पिनर को घुमाता है और एक के बाद एक स्ट्रॉ सारी की सारी फिर से गोल्ड बन जाती है। अब थोड़े ही टाइम में रानी जो दूसरे किंगडम में गई थी देखने के लिए वो वापस आती है। उसको क्लारा की सारी मुसीबतों का पता चल जाता है। बेचारी क्लारा जो है वो रानी के पास जाती है। उसको रानी जो है वो बहुत दयालु होती है। तुरंत ग्रिडॉल्फ को सज़ा दी जाती है, ऐसे आदमी को उन्होंने जॉब पे रखा, इसके लिए वो बहुत पछताती है और रानी क्लारा को बोलती है कि तुम
ये सारी गोल्ड, इतना सारा गोल्ड कैसे कर सकती हो? तो वो अपनी पूरी की पूरी स्टोरी रानी को बताती है। रानी उसके ऊपर यकीन करती है कि शायद से ऐसे कुछ हो सकता है कि कोई जादूगर, कोई स्ट्रेंजर आदमी हो सकता है जो इस लड़की को इतनी सारी स्ट्रॉन्ग गोल्ड करने में मदद कर रहा होगा। और वो लड़की बहुत हॉनेस्ट थी, हार्ड वर्किंग भी दिख रही थी। इसलिए रानी ने उसे कहा कि बेटा एक काम करो, तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो, तुम अपना जॉब ढूंढो, तुम अपना जॉब करो। तब वो लड़की उन्हें बताती है कि ये जो स्ट्रेंजर आदमी है हर मुसीबत में फंसे हुए आदमी को मदद करता रहता है। आप गांव में ढूंढ सकती हो, विलेजेस में कोई तो ऐसा होगा जिसको अभी भी ये स्ट्रेंजर आदमी मदद करता होगा। तो रानी अपने लोगों को स्ट्रेंजर आदमी को ढूंढने के लिए भेजती है। उसे पता चलता है कि ये स्ट्रेंजर आदमी लोगों से उनकी प्रेशियस चीज़ें ले लेता है और उसके बदले में उनकी मदद करता है। लेकिन दोस्तों, ये तो गलत बात है ना। किसी की प्रेशियस चीज़ लेने के बाद उसके लिए कोई हेल्प करे, ये हेल्प थोड़ी ना होती है। रानी क्लारा को जॉब पे लगा देती है। क्लारा एक बहुत इंटेलिजेंट लड़की होती है, वो जल्दी ही अपनी जॉब पा लेती है, अपना काम बहुत अच्छे से करती है और थोड़े ही दिनों में वो रानी के यहाँ अच्छे से काम करने के लिए अब रेडी हो जाती है। उनके हाथ के नीचे वो काम करती है। तो क्लारा बहुत सुखी है और वो मन ही मन सोचती रहती है कि एक ना एक दिन वो स्ट्रेंजर आदमी मुझे मिलने आएगा, क्योंकि उसको तो रिवार्ड भी देना पड़ेगा ना, इसलिए। और एक दिन जब वो पैलेस में अपना काम कर रही होती है एक दूसरे रूम में, तभी वो स्ट्रेंजर आदमी अचानक से क्लारा के सामने आ जाता है और उसको बोलता है कि मैंने स्पिनर को घुमाने के बाद तुमको बहुत सारा गोल्ड बना के दिया था, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे मनचाहा रिवार्ड दोगी, तो अब मेरी अपॉर्चुनिटी है, तो तुम मुझे मेरा रिवार्ड दे दो। वहाँ पे खड़े हुए जो सोल्जर्स थे वो उसे पकड़ने आ जाते। स्ट्रेंजर चुटकियों में यहाँ से वहाँ डिसअपेयर हो जाता है, अदृश्य हो जाता है और ये सारी चीज़ें क्लारा देखती रहती है। तभी स्ट्रेंजर बोलता है कि ये लड़की, हम एक गेम खेलते हैं, अगर तुम मेरा नाम मुझे बताओगी तो मेरा फ्रीडम जो है ये तुम्हारा हो जाएगा, मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा। तो लड़की सोचती है कि स्ट्रेंजर आदमी का नाम क्या होगा, वो सोचती है और फिर उसको बताती है मार्क होगा, जॉन होगा, रॉन होगा, हॉवर्ड होगा, डेरेक होगा, नहीं तो डॉन, तो डेफिनेटली तुम्हारा नाम होगा ही होगा। स्ट्रेंजर बोलता है कि ये नहीं है, हंसता है और वहाँ से वो अदृश्य हो जाता है। उसे पता है ये लड़की मेरा नाम कभी जान नहीं सकेगी और ये क्लारा को एक ना एक दिन मुझे जो चाहिए वो देना ही पड़ेगा। ऐसे बहुत दिन हो जाते, फिर एक दिन वो उनको टाइम दे देता है कि एक और दिन मैं तुमको देता हूँ, ये लास्ट दिन है। तो रानी सोल्जर्स को भेज देती है अपने किंगडम में क्लूज़ ढूंढने के लिए। तो सोल्जर्स यहाँ वहाँ घूमते हैं, तभी एक सोल्जर्स को एक गाना एक स्ट्रेंजर आदमी जंगल में गाते हुए दिखता है। फायर के पास वो नाचता रहता है और गाता रहता है। उसमें वो बोलता है कि आज मेरे यहाँ पार्टी है, आज मैं खाऊंगा, आज मैं देखूंगा, कल मैं खाऊंगा। और तब वो डांस करता है, सिंग करता है और बोलता है कि मैं काम करूंगा, मुझे प्रेशर चीज़ मिलेगी, फिर परसों मुझे रिवॉर्ड मिलेगा और किसी को पता भी नहीं है कि मेरा नाम रम्पेलस्टिल्टस्किन है। तो सोल्जर को पता चल जाता है कि इनका नाम रम्पेलस्टिल्टस्किन है। तो वो रानी को और क्लारा को जाके बता देता है कि स्ट्रेंजर आदमी का नाम यही है। क्लारा अच्छे से सुन लेती है, रम्पेलस्टिल्टस्किन। दूसरी नाइट को जब वो वहाँ पे आता है स्ट्रेंजर और उसको पूछता है मेरा नाम बताओ तो मैं तुम्हारा दास बन जाऊँगा। लड़की बोलती है टॉम है, हैरी है, रिन है, नहीं तो रम्पेलस्टिल्टस्किन तो होगा। और स्ट्रेंजर तभी बोलता है कि हे राम, मेरी पावर तो अब चली गई, मेरी सारी पावर लड़की तुमने ले ली, अब मैं बन गया तुम्हारा दास, अब मैं तुम्हारे
ऑर्डर, तुम जो बोलोगी मैं वो काम करूँगा, क्योंकि मैं अब तुम्हारा हो चुका हूँ, मेरा सारा फ्रीडम तुम्हारा हो चुका है। तो क्लैरा बोलती है कि सबसे पहले तुमने किसी की मदद की, वो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसके बदले में उनसे उनकी प्रेशियस थिंग ले ली, ये तुमने बहुत गंदा काम किया है। पर क्लैरा उसको बहुत मदद करती है, वो उसको कोई पनिशमेंट नहीं देती है, लेकिन उसको वो बोलती है कि तुम अब लोगों का मदद करो, लेकिन उनसे कोई चीज़ें अब तुम लेना नहीं है। तो रम्पेल्स्टिल्टस्किन उसको प्रॉमिस करता है कि आगे से वो किसी को भी मदद करेगा, उसके बदले में वो उनसे कोई भी प्रेशियस थिंग नहीं लेगा। उसके बाद में वो रानी से भी जाके सॉरी बोलता है और अपनी जो भी गलतियाँ की है उसके लिए पछताता है। बहुत सारा मनी वो क्लैरा को और क्वीन को अपने किंगडम के यूज़ के लिए दे देता है। इसके बाद में लोगों को मदद करता है। किंगडम में जितने भी आदमी होते हैं सबको वो बहुत खुशी खुशी रख देता है, और वो भी मदद बिना किसी प्रेशियस थिंग के। दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी?